9 p.m. For those 9 minutes at 9 p.m. With our guests in the studio, we have with us Dr. Anupam Prakash from the Department of Medicine at Lady Hardinge Medical College, and Praful Ketkar is the editor of Organizer, who is with us. Mr. Ketkar, let's start with you now. We saw that there's an overwhelming response, and it looked very beautiful also. The lights lit up. It gives us a sense of purpose, in a sense, that because we need to, we are fighting an unknown enemy, and we have to come together to fight it. And this is one way of standing together, isn't it? Yeah, see, Mark, light is the symbol of hope. Light is the symbol of knowledge. Light is a symbol of positivity. Here, the two issues that we are going through. On the one hand, we are in a way imposing a lockdown, which is very difficult to sustain for many people for a long time. India culturally and socially has been generally a society of festivities. We prefer mingling with our neighbors. We have interactions with, people in our societies, localities, in whichever social strata we are from. So there, if we have confined ourselves, we have restricted our movements, we are not going to our offices, this is itself is a source of negativity and depression for us. Yes. At the same time, when we are getting so much of consumption of news, which is again more negative in nature, unless you have some positive purpose, unless you have something which you can do collectively on with certain objective. So everybody knows that just lighting a lamp is not going to do away with the corona crisis, but it is going to give us a sense of purpose, a sense of solidarity, and at the same time it is giving us a way of communicating with each other, socializing with each other, still staying at our home. So it is a way, innovative way, like Janata Curfew was a kind of experimentation of giving people a sense of staying away before the actual lockdown. Similarly, it is a more participatory democratic method for connecting the people with the administrative measures to implement the lockdown. So that positivity and sense of purpose. And that positivity, Dr. Prakash, also when it reaches each person, they feel more confident. As Praful Ketkar was saying, that there's a lot of news that can have a negative impact on you, and when you stand together, you have this positive feeling that you can tackle whatever is coming your way. How important is that from the point of view of a person who's facing the possibility of getting an infection? Well, it is totally correct, and I totally agree with it. And I think that as you said that it looks beautiful, and everybody has participated and the response has been overwhelming. I totally attribute it that it acts as that the whole India is united in its fight against corona. And I think that it is a moment of solidarity, and it gives us as frontline workers a lot of motivation as well as hope also, that we will be able to fight it out, and we are fighting it on the behalf of 130 crore Indians who are there confined to their homes. Sure. But yes, at least we and all the workforce. On the screen we also have the tweet of the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. 2 diyas, one for me and the other for my 88-year-old mother who could not be at the door. Joining an expression of mass solidarity, India stands united as never before. Jai Hind. # 9 PM 9 minute. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो उनकी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, 2 दिया हाथ में लेकर वो खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक वो खुद अपनी तरफ से और एक अपनी माँ की तरफ से, जो 88 साल की हैं, वो शायद बाहर नहीं आ सकती हैं, तो एक तरह से एकजुटता दिखाते हुए अपनी तरफ से। और डॉक्टर प्रकाश, जिस तरह से अभी आप कह भी रहे थे, और एक रोगी के नज़रिए से या ऐसी परिस्थिति के मद्देनज़र जहाँ पे बहुत सारी निराशा हो, आपको लगता है जब एकजुटता की बात आती है, जब उसे पता चलता है कि इस लड़ाई में तमाम एजेंसियाँ, डॉक्टर ही साथ नहीं है, पूरा देश उसके साथ है, किस तरह से ये लड़ाई आसान बनती है? देखिए, अगर हम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कुछ भी करते हैं तो हम ज़रूर जीतेंगे, इसमें कोई हार का सवाल ही नहीं उठता है, मेरा मानना है।
और अगर आपको पता होता है, जैसे आप अगर क्रिकेट के खिलाड़ी भी होते हैं या हॉकी के खिलाड़ी भी होते हैं, अगर स्टेडियम खाली होता है या आप कहते हैं होम एडवांटेज है, तो वैसे ही आज की तारीख में चाहे अस्पताल का कोई कर्मचारी हो, चाहे डिस्पेंसरी का कोई डॉक्टर हो या वर्कर है, चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे प्रेस है, मीडिया है, जो भी काम कर रहा है आज की तारीख में, और जो जनता घर में भी है, वो भी, उन सब के लिए ये एक बहुत ही समय है मेरे ख्याल से, मोटिवेशन के लिए भी, और हम लोगों को लड़ने में इसमें बहुत ही मदद मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एक एक क्षण में, एक एक काम में हमारे जो इफेक्टिव हमारी स्ट्रेंथ है और जो हम काम करेंगे वो हमारी एफिशिएंसी जो है वो ट्रांसलेट करेगी हमारे देशवासियों को बचाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पूरा बताता है कि इंडिया जो है, हम लोग जो जितना भी काम करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और हमें पता है कि हमारे जो काम है, हमारे जो कर्म होंगे इसमें, जो अस्पताल में करेंगे, जहां भी करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं उनका आगे फ्यूचर क्या है, और हमारी फाइट कोरोना की उतनी ही स्ट्रांग होती है। प्रफुल्ल केतकर जी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जब वो बात कर रहे थे हमारे संवाददाता से, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त में भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ विरोध के स्वर, कुछ नकारात्मक बातें कई हलकों से आई हैं। आपको लगता है कि इस तरह की बात हो रही है कि कुछ तैयारियों को लेकर, कुछ इक्विपमेंट्स की कमी को लेकर इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे में अगर देश लड़ रहा है, एकजुट हो रहा है और इस तरह की एकजुटता दिखा रहा है, तो आपको लगता है इसमें क्या संदेश छुपा है? इन तमाम कुछ छोटी छोटी चीज़ें तैयारियों के स्तर पे अगर अभी हो भी रही हैं तब भी। देखिए, दो चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि संकट जो बिना बताए आया है उसमें लड़ते हुए कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, कुछ चीज़ें हम शायद गलतियों से ही सीखेंगे, या दूसरों की या अपनी, लेकिन वो गलतियां शायद होंगी। तो वो एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का हमारा पॉपुलेशन है, जिस तरह का हमारा रूरल अर्बन का इंटरडिपेंडेंस रहा है, उसमें कुछ पॉपुलेशन को लेकर मूवमेंट और ये सारी चीज़ें, तो ये भी चीज़ें होंगी। लेकिन ये रहते हुए भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां हाथ में दिया लिए हुए, जो 9 बजे 9 मिनट का आह्वान था उसमें भी प्रधानमंत्री की मां पूरा साथ देते हुए। इससे पहले हमने देखा था जब जनता कर्फ्यू के दिन हमने देखा था, जब थाली बजाने और ताली बजाने की बात थी, तो उसमें भी उनकी भागीदारी हमें देखने को मिली थी। जी प्रफुल्ल केतकर जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, तो जैसे हमने देखा कि सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं, बाकी विश्व के सारे इससे हम तुलना करें तो हमेशा शायद हम हमारी तैयारी में 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। कुछ संकट आए भी तो जिस तरह से हमने सरकार के नाते भी और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के नाते भी, अभी पिछले 2-3 दिन की बात छोड़ दी जाए, और इसी कारण से मैं इस 9 बजे 9 मिनट का इनिशिएटिव और भी इम्पोर्टेंट मानता हूं कि पिछले 2-3 दिन में जिस तरह का वातावरण खराब हुआ था, अचानक संख्या बढ़ने के कारण और एक घटना के कारण, एक ग्रुप ने, एक संगठन ने वो आदेश ना पालने के कारण कितने बड़े संकट से अनेक राज्यों में हम आज गुजर रहे हैं। उससे पहले का यदि हम बाकी देशों से तुलना करें तो हमने तो लगभग कर्व एक तरह से मेंटेन करके रखा था, फ्लैट करके रखा था। निश्चित तौर पर हम बताना चाहेंगे दर्शकों को, ये तस्वीरें जो राष्ट्रपति भवन से आई थी, हमने दिखाया था राष्ट्रपति एक तरह से, उन्होंने पूरे देश को एक तरह से लीड किया 9 बजे 9 मिनट के इस अभियान को लेकर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवारजनों के साथ, और इसी तरह से तमाम गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए, आम हो या खास, सब ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की। Yes, and we can also see that they have been maintaining social distancing as well in this particular picture that we have received from Rashtrapati Bhavan. The president himself was the first person we displayed to you on our screens at 9 p.m. Lighting his candles and the lamps and leading the nation in this particular move of solidarity to fight against coronavirus. And we also showed you some other visuals of CRPF personnel as well. And we have our correspondents at different parts of the country. We have Ani Brato in Kolkata, and Vishal Barristo would be joining us as well from Jaipur.
So there they are. In fact, let's go across first to Anibrato, who's joining us from Kolkata. Well, Anibrato, we saw visuals from different parts of the country. What was the experience like in Kolkata? Mark, it's truly amazing because Kolkata, along with the entire country, ignited the flame of unity, and it shown the dexterity, and the solidarity to the cause. The Prime Minister had given call to ignite the flame right at 9 and set it aglow for 9 minutes. Here we find, we are standing in South Kolkata, it's at Behala, we find the people remained united, but they maintained social distance, they ignited the flame of unity. It is the need of the hour because the cast of gloom of uncertainty is all around us, and people want to get rid of these things because unseen corona that has cast a gloom of uncertainty. So people are responding to the cause, responding in unison to the call of Prime Minister that is given. They are strictly maintaining the 21 days lockdown here in Kolkata, and at the same time, as we find. और लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो 9 बजे 9 मिनट का अभियान था, जो आह्वान था प्रधानमंत्री का, उसमें समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर रहा है, उन्होंने किया और तमाम तस्वीरें धीरे धीरे पहुंच रही हैं हम तक, और ये तमाम तस्वीरें यही दिखा रही हैं कि कैसे इस लड़ाई में, इस महालड़ाई में देश का हर व्यक्ति शामिल होना चाहता है, अपनी भागीदारी करना चाहता है, एकजुटता दिखाना चाहता है. And all these visuals were between 9 p.m., the 9 minutes after 9 p.m. So they are not live visuals, they are visuals that have come into us and we are showing it to you. Let's go across to Vishal Barrister, who was following the event in Jaipur. Vishal, so what was it like to see all the lights come out onto the balconies, and light up, in a sense, the fight against coronavirus? Well, a very good evening to you, Mark and OP. It's very nice to see. It's very nice to see people from all quarters of life, from all religion, participating in this mega event and to express their solidarity. Remember, it's not only the Hindus who are celebrating Diwali today, but also different religions like Christians are celebrating Palm Sunday, which is also a day of victory. And they all came out with candles, with their lamps, and they all showed their mobile torches to express that they are one. India stands united against all kind of attack if it comes from coronavirus, and this all has happened here in Jaipur. From the evening itself, Mark, from the 6 p.m. people had started coming out with the lamps, and they have started placing their lamps at a different location, the candles, and at 8:45 they all lit up their lamps and candles, and it was an absolutely picture of happiness, because it has been a long time of fight against coronavirus, of the lockdown, of the depression, of the darkness, and so all the forces of darkness, they must have ran away from India as the whole country stood united with light in their hands. So definitely I would say, let there be light, and so today was the light, and India stood united along with Jaipur. Mark? Right. Thanks very much, Vishal and Anibrato, for joining us for the moment. I suppose we may be coming back to you also a little later, but let's turn to our guests once again. Praful Ketkar, so we've seen that, people have come out in large numbers. They have expressed their solidarity. This is a fight that we will fight with all our might. And the sense that, it's people will understand that it's symbolism, but it is more than symbolism. It is a desire for victory, and a light is a sign of victory in a sense, isn't it? It is, very symbolic in the sense, as we say, we move from, darkness to light. Yes. And, basically, darkness is nothing but absence of light. So here we created, we experienced the darkness, but we ourselves created the light to, get rid of it. So it is a sense of confidence. It is a sense of collectivity. The best part of this is, we are seeing across the political line, across the religious line, people have come together, and, generally, this is the tweet that we are seeing from Prime Minister's, he himself
बिल्कुल, और ये तस्वीरें बिल्कुल तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 9 बजे 9 मिनट के लिए जब पूरा देश उस अभियान में था, प्रधानमंत्री भी ज्योति प्रज्वलित कर रहे थे और जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि इस अंधकार में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज जरूरत है कि प्रकाश जो इसके खिलाफ है वो खड़ा हो, ज्योति पुंज खड़ा हो। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीर भी यही बताते हुए जो उन्होंने कहा था कि हम प्रकाश की महाशक्ति अनुभव ग्रहण करेंगे और इस साझा उद्देश्य को लेकर जगमगाएंगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये संदेश, प्रधानमंत्री की ये तस्वीर से भी बार बार उभर कर सामने आ रहा है। Yes, indeed, and we can see the Prime Minister there lighting the diya at his residence at Lok Kalyan Marg, and the Prime Minister himself had given this call, as we can see, and he is leading it from the front. He himself had said, you know, amidst the darkness spread by the corona pandemic, we must progress towards light, and that exactly is what Praful Ketkar was talking about a little earlier. Mr. Ketkar, yeah, you can continue. Yeah. You know, what he has, tweeted that Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhana Sampadam. So it is, the light is also about, the healthy and prosperous nation. So symbolically it is very, very important, but in this, age of and the period of gloomy and negative atmosphere, yes, it also gives a lot of hope. What I was, highlighting the point is across the, social strata, across political lines, across religious lines, we are seeing people coming together and, actually participating in this unique initiative in this difficult phase. So, and just a couple of days back, one international agency came up with international approval ratings of various leaders, and Prime Minister Modi is leading that chart with 63% of approval. We are seeing this. Why? Simply because the innovations that he is bringing to make it participatory in a democratic country to implement this kind of lockdown, yes, is a very difficult thing. What we are seeing in Europe or in the US, they are still hesitant to take this kind of call, simply because, yes, in a democracy you cannot. So unless there is a participatory approach, unless there is a sense of collectivity while remaining individually confined at your home, it's really difficult. तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अब ये आप देख रहे हैं वीडियो, यानी तस्वीरें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ज्योति प्रज्वलित की और जिस तरह से उन्होंने संदेश भी दिया कि ज्योति किस तरह से आशा का प्रतीक है, जिस तरह से उन्होंने संदेश भी दिया था कि कोरोना महामारी से उपजे जो अंधकार है उससे निकलते हुए हमें लगातार प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है। और उनकी ये तस्वीर यही संदेश दे रही है। और इस तरह से जो उन्होंने आह्वान किया था पिछले शुक्रवार को, लोग भी इस एकजुटता में एक साथ खड़े हुए और प्रधानमंत्री की इस तस्वीर में भी वही बात सामने निकल कर आ रही है। और एक तरह से जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान कह रहे थे कि उन्होंने इस पूरी महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसका जिस तरह से नेतृत्व किया है वो मायने रखता है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस देश ने किस तरह से कदम उठाने में क्या देरी की, क्या गलतियां की, लेकिन जिस तरह से भारत की तारीफ हो रही है, चर्चा हो रही है कि समय रहते न सिर्फ तैयारी की गई, इस तरह से फैसले लिए गए और प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हम उन्हें बार बार लगातार समाज के हर तबके से संवाद स्थापित कर रहे हैं ताकि इस लड़ाई में एकजुटता कायम रह सके। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ज्योति प्रज्वलित करते हुए 9 बजे 9 मिनट का जो आह्वान उन्होंने खुद किया था, और आपको लगता है कि जिस तरह से देश उनके साथ खड़ा रहा इस अभियान के साथ, इस आह्वान के साथ, वो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम निश्चित तौर पर लड़ाई में ज्योति की आशा लेकर आगे बढ़ेंगे, और उसी को हम देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है टाइम पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे कि वो भी लगभग 9 बजे के आसपास उन्होंने जो लाइट थी उसको बंद किया था, और उसके बाद में हमने देखा कि उन्होंने भी दीप को प्रज्वलित किया था।
और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में एक तरह से जो 9 बजे उन्होंने 9 मिनट के लिए जो दिए जलाए हैं, अगर आप देखें तो पहले से ही पूरे देश भर के अंदर ये शुरुआत हो चुकी थी और आप देखेंगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से दियों को जलाया है और इस अंधकार रूपी जो इस समय पर जो एक तरह से जो माहौल बना हुआ है जो कोरोना वायरस की वजह से एक तरह से उसको एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि भारत एकजुटता के साथ में खड़ा हुआ है। भारत का कोई भी नागरिक अकेला नहीं है। 130 करोड़ लोग जो भारत के हैं वो एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि सबका साथ और सबका विकास है और सबका विश्वास भी इसके अंदर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों के साथ में एक तरह से जब हम कहते हैं कि जन भागीदारी की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक प्रधान सेवक के तौर पर एक तरह से पूरे जनता के साथ में, जनता जनार्दन के साथ में वो भी दीप को प्रज्वलित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, आज लगभग 130 करोड़ के आसपास जो भारतीय वो एक साथ आए हैं और इस अंधकार को दूर करते हुए आज दिवाली मनाते हुए एक तरह से दियों को प्रज्वलित करते हुए, ताकि इस अंधकार रूपी जो माहौल इस समय पर जो चल रहा है कोविड-19 को लेकर के इसके खिलाफ जो जंग है इसको तेज किया जा सके और सब लोग एक साथ आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें याद है कि जो अपील की थी जनता कर्फ्यू की वो बेहद सफल रहा था और उसके बाद में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों के सामने जब अपील करी थी कि आप रविवार के दिन 5 तारीख को 9 बजे आइए और 9 मिनट के लिए आप दिए जलाइए, आप देखिए कि लोगों ने 9 बजे से पहले ही दियों को जलाना शुरू कर दिया था और अभी भी लोग दिए जला रहे हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो, क्या आम आदमी और क्या खास आदमी, सब लोग एक तरह से, चाहे बिजनेस वर्ल्ड के लोग हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो बॉलीवुड की, हर कोई आप देखिए कि दिए जला रहा है अपने घरों की लाइटों को बंद करके। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि केवल अपने घरों की लाइटों को बंद करें और उसके बाद में दियों को जलाएं, तो वही एक तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए उन्होंने ठीक 9 बजे अपने जो चौखट था, जो उनके जो घर के एलके एरिया के बाहर का चौखट था, उसको लाइट को पहले बंद करवाया गया, लाइट को बंद किया गया। उसके बाद उन्होंने जो मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जो एक तरह से जो दिया था जो उनके हाथ में, उस दिए से उन्होंने एक और बड़ा विशाल दिया इसको प्रज्वलित किया था। तो ये बहुत बड़ा संदेश जाता है कि अंधकार रूपी माहौल को परास्त करना है, अंधकार रूपी माहौल जो कोविड के रूप में पूरी दुनिया भर के सामने आया है इसको पराजित करना है और इसके लिए सिर्फ एक ही सूत्र है, वो सूत्र ये है कि सारे 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए, घरों में रहकर के एक तरह से आप दिए को प्रज्वलित कीजिए। तो यही एक तरह से 130 करोड़ भारतीय दिखाई दिए यहाँ पर। जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों को हम बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 9 बजे की तस्वीरें हैं, जब 9 बजे 9 मिनट का जो अभियान शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री खुद अपने आवास पर, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है दिल्ली में, वहां अपने घर पे उन्होंने अपनी बत्तियां बंद की और उसके बाद जैसे देश के 130 करोड़ लोगों ने दिया लेकर, रोशनी का पुंज लेकर वो अपने घरों के बाहर थे, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी ये संदेश दिया। Let's turn to our guests in the studio once again. Dr. Anupam Prakash, you are, in a sense, you know, the doctors are the ones giving the light, because it is you're the ones telling us what to do, what is right, what is wrong. Otherwise, you know, we'd fall into darkness if we don't actually agree with what the doctors say. So that's also an important message, you know, when we have a common purpose and we are moving towards the light, it is actually, we have to listen to the doctors at this point of time, because they are the ones giving us the light. Well, I think it is a very big pedestal that you have kept for us, and I am really obliged for that. On behalf of the whole community, I thank you and all the organizers of DD News for putting doctors on such a big pedestal. So I would say that yes, we need to bring hope. Yes. That is one thing. Whenever any patient comes to us, that is the foremost thing that is on our mind, to relieve misery and to bring succor to the patient. The other thing is, in times of corona, obviously, when we don't have a treatment for a disease, the foremost thing, the priority that we have is to spread awareness, because as the saying goes, prevention is better than cure. It is always good to prevent. And if you go to the Ministry of Health website, there are so many advisories, beginning from social distancing, maintaining how to wear a mask, how to actually practice hygienic measures, maintain your own cuff etiquette, cuffing in your own elbow or arm, using a cover, using a cloth and throwing it in a dustbin,
Now we have a recent advisory on using homemade masks also, and obviously that is for those who are not practicing in healthcare scenarios and for those who are living in crowded areas or moving to crowded places to buy some things, groceries, etc. So these are things which are actually very important. And spreading awareness, again coming to the same thing, that when you light a lamp, you not only bring light or you spread awareness, but also there is another thing, when you light a diya there is oil inside, and that oil burns, and it is considered that that burning of that oil is actually removing selfishness, removing self centered attitude. So that is a dual thing. It is not only spreading light, but yes, doing charity or working towards a aim to bring succor to our countrymen. बिल्कुल. So I think that is right. हाँ, yes. बिल्कुल. डॉक्टर प्रकाश, जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी मार्क, उन्होंने भी कहा कि दरअसल में आप हैं जो, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल लाइट जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए और अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए रोशनी देने का काम करने के लिए सब लोगों को आह्वान किया था। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान को स्वीकार करते हुए श्रद्धापूर्वक देशवासियों ने अपने अपनी घर की द्वार की सामने ही जलाए, मोमबत्ती जलाए, टॉर्च लाइट जलाए और मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए आज चारों तरफ उजाला ही उजाला कर डाला। और आज ये जो कार्यक्रम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए देशवासियों को दिया था कि हमारी देश की हर व्यक्ति कोरोना वायरस से सबको मुक्ति मिले, सबको रक्षा करने के लिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान के जरिए देशवासियों को एकत्रित होकर कोरोना वायरस ने जो अंधकार का माहौल बनाया है, इससे निकलकर रोशनी की दुनिया की तरफ देशवासियों को जाने के लिए उत्साहित किया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए भक्ति भावनाओं से जो कदम उठाते आए हैं, शायद जनता कर्फ्यू हो, लॉकडाउन हो, आज जो दिया जलाने का काम हो, हर कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लक्ष्य है, और लक्ष्य है देशवासियों को रक्षा करना, सुरक्षित करना। और मुझे लगता है कि आज देशवासियों ने सारे विषय को गंभीर उपलब्धि से आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से असम की जनता की तरफ से भक्ति भावनाओं से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये थे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और एक सवाल मैं डॉक्टर प्रकाश आपसे जानना चाहूँगा कि जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि डॉक्टर ही इस समय हैं जो प्रकाश दे रहे हैं दरअसल में, और काफ़ी हद तक की बात सही भी है, ये बताएं ये तब ये स्थिति है जब हमने देखा पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुए, मेडिकल स्टाफ के साथ कई जगह उन्हें नाराज़गी झेलनी पड़ी। आपको लगता है ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है इस तरह का आयोजन और किस तरह से उनके उत्साह को बल देगा? देखिए, मेरा मानना है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और काफ़ी दुर्व्यवहार जो अखबार में आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है, जो मरीज की सेवा कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, पर्सनल, डॉक्टर्स, उनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। और जो रिहायशी एरिया में रह भी रहे हैं तो लोग इतना ज़्यादा भयभीत हो गए हैं कि वो डॉक्टरों को घर से भी जो किराए पे रह रहे हैं निकालने की भी न्यूज़ काफ़ी आई है। तो ये मेरा मानना है कि बहुत ही गलत है। और
इसको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ये आपने लॉ जलाई है आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसका एक पर्पस, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अवेयरनेस बढ़े, ज्ञान, हम लोग अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाएं। तो हम लोगों को जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि वायरस का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, और अगर आप डॉक्टर को ही साथ बदसलूकी करोगे या घर से निकालोगे तो अगर आपको कल को जरूरत पड़ेगी तो यही डॉक्टर ही आपकी मदद करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही एक मोटिवेशन का मुद्दा तो है ही जो आज हुआ है उसके लिए भी, और जैसे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने किया था। Yes, in fact, our correspondents are on the field, and let's go across now to Mumbai. We are going to be joined on the field by Yogesh Sheetal, who is joining us from Mumbai. Yogesh, are you with us? Yes, Mark. Yes, Yogesh. So tell us, give us a brief description of what the entire experience was like in Mumbai. But you know, we are currently getting some visuals that are coming in from Itanagar as well. So we are going to play those visuals out for our audience, for the viewers. This is an important to show that you know this is all across the country. We have visuals also from Itanagar in Arunachal Pradesh. जो सबसे पूर्व का इलाका है देश का, वहाँ से ये तस्वीरें आती हुई ईटानगर का विजुअल्स और निश्चित तौर पर दिवाली से कम मोहक तस्वीरें ये नहीं कही जा सकती है इस कोरोना की महामारी के अंधकार के समय में भी। In fact, yes, Yogesh, you can now tell us what the experience was like in Mumbai, because as we spoke to you earlier in the day as well, you know, Mumbai is one of the the city with the largest number of coronavirus cases. You know, Delhi is also there, but this is a cause of concern, isn't it? Right, Mark. So as far as the cause of concern is concerned, Mumbai is definitely one of the worst affected city comparatively. Not only Mumbai but also Pune and other pockets of Maharashtra. We just talk broadly on that issue. And now coming to the campaign, basically, let me tell you that Mumbai and Navi Mumbai and all the adjoining areas have witnessed very wonderful reactions and wonderful support to the unsung heroes, and also to the people who are right now on the ground, and they are working to ensure that the country faces this situation very bravely and very very properly. And that's the reason why we had seen that people voluntarily they are coming out. They have come in their balcony, they have come on the doorsteps, they have also lit the lamp, and also they have chanted many slogans like Bharat Mata Ki Jai. Some of them say Ganpati Bappa Moria, whatever they believe in basically. So they have shown that they are very they are supporting the steps taken by the government. They are also supporting the lockdown. However, they are facing some trouble. There's no doubt. Not even a single person can say that they are not affected by the lockdown. But for the larger benefit, for the larger good, there are some restrictions, and that is definitely the uncertain times the country is going through. But they are with the country. They are with the people. They are standing with the country at this time. They have shown not only in Mumbai but also other pockets of Maharashtra as well. Yeah, Mark. योगेश, हम निश्चित तौर पर जानते हैं, और जिस तरह से वहाँ महाराष्ट्र में मामले शुरू में बड़े तेजी से बढ़े, और ऐसे वक्त में आपको लगता है आम लोग एकजुटता दिखा रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स हैं और जो तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ, उनको लेकर भी कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए ऐसे वक्त में? देखिए, वो भी मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत सारे झटके जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र ने झेला है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो ह्यूमन मेड हो, मतलब मसलन आतंकवादी हमले को आप देख लें मुंबई और महाराष्ट्र में, इन सब चीज़ों से मुंबई काफ़ी गुजरा है। इसी कारण से है कि मुंबई में एक आत्मविश्वास आपको जरूर दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो मुंबई या जो आसपास के इलाके हैं जहाँ से बेसिकली वर्कर्स हैं जो कि बाहर के या सटे हुए शहर से आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, तो वो एक जो यहाँ का वर्क कल्चर
कल्चर है वो बाकी शहरों से काफी अलग है। अगर आप दिल्ली को ही देख लें या जो भी मेट्रो सिटीज को आप देख लें, मुंबई का वर्क कल्चर उनसे आपको काफी अलग दिखेगा। उसके कई सारे कारण है। एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो काफी महंगा शहर माना जाता है, यहाँ रहने की स्थिति यह है कि रोज आदमी धक्के खाते हैं, रोज आदमी जो है वो तरह तरह की चुनौतियां फेस करते हैं, तो वो अंदर से काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। और यही कारण है कि आप जब भी देखेंगे इस तरह के स्लोगन्स आम हैं कि लोग कहेंगे कि मुंबई कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। अब जब कोरोना की बात आई है तो सबके अंदर डर है, क्योंकि मुंबई लोकल पे कई सारी फिल्में, मुंबई लोकल में आप देखेंगे तो लोगों में कम से कम एक दूसरे को लोग धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। एक अपनापन जो है वो मुंबई में आपको दिखता है, बाकी शहरों से थोड़ा अलग है। यहाँ अपनापन ज्यादा है और ऐसे स्थिति में लोग जो है एक साथ खड़े हों, इसका संदेश भी लोग यहाँ पे दे रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों ने, मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने जज्बा दिखाया है। और लखनऊ हम आपको ले चलेंगे, हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, निश्चित तौर पर 9 बजे 9 मिनट इस अभियान में लखनऊ भी पीछे नहीं रहा होगा, क्या बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, पीछे नहीं रहा, काफी ज्यादा आगे रहा। उसने संयम दिखाया, अनुशासन दिखाया लखनऊ के लोगों ने। और तकरीबन अभी 1 घंटा पूरे होने वाले हैं, लेकिन अपने पीछे की तस्वीर 1 मिनट दिखाना चाहूंगा आपको। अभी भी यहाँ पर दिए, मोमबत्तियां जल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा संदेश है कि प्रधानमंत्री की अपील पर, उनके आह्वान पर कोरोना के अंधकार से जंग में लखनऊ की जनता ने भरपूर साथ दिया। और साथ देने के साथ साथ ये बात जाहिर की है कि उन्होंने बिल्कुल अनुशासन नहीं तोड़ा। सभी लोग अपनी बालकनी पे रहे, दरवाजों पे रहे, उसके ज्यादा भीड़ लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और ये बात जाहिर है कि जो जो चीजें लॉकडाउन में जरूरी होती हैं उनका पालन करते हुए इस बात को जता दिया यहाँ के लोगों ने कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर कि कोरोना से जंग में एक एक वासी उनके साथ है, हौसला बुलंद है और इसी हौसले के साथ हम कोरोना को हराएंगे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। निश्चित तौर पर संयम जरूरी है और जो सावधानियां बरतनी है वो बेहद जरूरी है। और आखिरी में कमेंट अगर लेना चाहें प्रफुल्ल केतकर जी, एक जो लंबी लड़ाई है, मुश्किल लड़ाई है, आपको लगता है उसमें आज एक पड़ाव माना जाए उसे, और वो कितना इस लड़ाई को बेहतर करेगा और ज़्यादा उत्साह भरेगा? देखिए, लड़ाई है, लड़ाई में एक तरह से धीरज भी देना पड़ता है, उत्साह भी बढ़ाना पड़ता है, और लड़ाई की एक तरह से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक तैयारी भी करनी पड़ती है। हम बार बार इससे दिवाली को जोड़ रहे हैं। दिवाली में हम घर भी सजाते हैं, दिवाली में घर के लाइट भी जलाते हैं। हमारा समाज वैसे ही उत्सव मनाने वाला है। देखिए, जब जनता कर्फ्यू के दिन ताली और थाली बजाने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने जुलूस बना दिया। तो उससे बचने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास से जो हमारे सामने तस्वीर आई है वो सेलिब्रेशन की नहीं है, वो सीरियसनेस की है। उस प्रकाश से जुड़े हुए बच्चे भी इससे जुड़े रहे और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुड़े, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये जो उसका उस प्रकाश के साथ का सीरियसनेस जो पीछे के अंधकार के कारण है, वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा दिवाली से इसको अलग करता है, क्योंकि दिवाली में घर के भी दिए जले होते हैं। तो ये जो है, ये मुझे लगता है कि इस लड़ाई के लिए हमारी मानसिकता सीरियसनेस की हो, इसका भी एक तरह से संदेश, खास करके प्रधानमंत्री के इसमें जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है उससे हमें दिखता है। तो मुझे लगता है उस सीरियसनेस के साथ हम इस लड़ाई में आगे के लिए भी अपनी तैयारी रखें, और जो अलग अलग एजेंसियां आपने इसमें भूमिका निभा रही है उनके साथ खड़े रहे, बिल्कुल, तो हम लड़ाई में निश्चित जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। In fact, I think that's all the time we have for in this program. So we'd like to thank you, Dr. Anupam Prakash and Praful Ketkar, for being with us in the studio, and for all our correspondents who were on the field. And we started this 9 p.m. 9 minutes, the fight against coronavirus with the Prime Minister's call to light diyas, and we saw that it was overwhelmingly received by people across the country, and it has given us the courage to, stay ahead of the curve, to fight and to be ahead of the coronavirus. And as Dr. Prakash was saying, there is only victory when we are talking about this particular fight. There is no question of any defeat. बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और संदेश बड़ा यही है कि तमाम सावधानियों का हम ख्याल रखें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, और लगातार जो डॉक्टरों के द्वारा संदेश दिए जा रहे हैं उसका भी ख्याल रखें, लॉकडाउन का भी ख्याल रखें। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।
लाइट थोड़ा डल कर दो। जब लाइट पे काटो ना मुझे बता देना। अरे भाई लाइट
नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे विशेष प्रसारण में। और लगभग 1 मिनट बचे हैं जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस अंधकार में ज्योति प्रकाश का एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। पूरा देश 9 मिनट दिया, मोमबत्ती या किसी तरह की रोशनी जलाकर एकजुटता का परिचय देगा प्रधानमंत्री के आह्वान पर। Yes, indeed. Hashtag 9 p.m. 9 minutes in just a few seconds from now, actually, where all the nation will be getting together to light diyas, candles, or mobile flashlights. This is a call given by Prime Minister Narendra Modi. It's an act of solidarity and a collective spirit to defeat the coronavirus. बिल्कुल, ये वो देश है जहां पे हम हमेशा से अंधकार के खिलाफ प्रकाश की लड़ाई, प्रकाश का सहारा लेते आए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पे 9 बजे 9 मिनट की पूरी तैयारी है और 9 बज चुके हैं और पूरा देश इस वक्त अपने हाथों में रोशनी का पुंज लिए खड़ा है, जो बता रहा है कि कोरोना के इस घनघोर लड़ाई, अंधकार की लड़ाई में एक और ज्योति प्रकाश का अध्याय जुड़ रहा है। And we can see that President Ramnath Kovind himself leading the nation in responding to this call for the collective spirit to defeat the coronavirus. The President and his family at Rashtrapati Bhavan lighting candles. राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके परिवारजन हम देख रहे हैं, खड़े हैं इस ज्योतिपुंज के साथ। और ये तस्वीरें पूरे देश भर से आप देख रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी दीप प्रज्वलन किया है। और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और इस वक्त मुझे याद आती हैं मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां जो कहती हैं, तम में तू भी कम नहीं जी, जुगनू बड़ भाग, भवन भवन में दीप है, जा वन वन में जाग। तो ये एक जागृति का परिचय है, हम दे रहे हैं। देश के 130 करोड़ लोग इस कोरोना के अंधकार में, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो भी अपने परिवारजनों के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए। And yes, we can see the Minister for Information and Broadcasting, Prakash Javadekar, at his residence as well. We can see that they have lighted the lamps, diyas, and all participating in this collective spirit of coming together where light dispels darkness, and it's an act of solidarity where all of us as a nation stand together in our collective spirit to defeat this virus that has the potential to spread fast. And so we are standing together, united against this virus to defeat it. बिल्कुल निश्चित तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, तमाम गणमान्य लोगों की तस्वीरें। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपने आवास पर मोमबत्ती, वो शक्तिपुंज, वो ज्योतिपुंज लेकर खड़े हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी दीप प्रज्वलित करते हुए। और ये दिया दरअसल में प्रतीक है उस मनोभावना का, उस आत्मबल का जो अंधकार से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये इस वक्त पूरी दुनिया पे ये अंधकार है एक वायरस का, और उससे लड़ने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होने की अपील की जा रही है, उसी का ये प्रतीक। और साथ में जो इस लड़ाई में आगे बढ़कर खड़े हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर हैं, पुलिस के लोग हैं, तमाम एजेंसियां हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, उनका भी मनोबल ये बढ़ा रहा है कि आप इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन घरों में हम भी खड़े हैं इस दिए के साथ, जो आपको तेज देगा, जो आपको रोशनी देगा, जो शक्ति देगा, बल देगा इस लड़ाई में लड़ने के लिए। ये एक लंबा सफर हो सकता है, और अगर इस सफर को, इस लड़ाई को कम करना है तो हमें एकजुट आना होगा। Yes, indeed. And so we can see that, the collective spirit comes with a commitment. This is a solidarity where people stand together that they are committed not to be carriers of this virus, because the whole purpose of the lockdown itself is to break the transmission of the virus. And if that is broken, then, there is no sense in the lockdown. So we as the carriers of this virus that's transported through us, we are all taking this collective pledge by lighting lamps that we are not going to be carriers of this virus. We will do our best to follow whatever instructions are put to us to prevent the spread of this virus. बिल्कुल, और ये हमें दिख रहे हैं
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हाथों में दिया लिए हुए, हाथों में मोमबत्ती लिए हुए, और कहना पड़ेगा कि अंधेरे में भी ज्ञान की साधना और तपस्या का एक तरह का संदेश है। इसलिए चारों ओर जब कठिनाइयों की कालिमा गहरा रही हो, तब भी इस देश ने आत्मदीपो भवा का संदेश दिया है। ये वो देश है जो सबसे काली रात्रि में भी ये देश दीपों का उत्सव मनाता है। अंधकार जो है बुराई का प्रतीक है, तो दीप जो है सच्चाई और उससे जूझने का प्रतीक है, और ये देश की परंपरा रही है। और उसी परंपरा को आज एक नए स्तर पर हम ले जा रहे हैं। एक ऐसी महामारी, एक ऐसी समस्या के खिलाफ जो देशों की सीमाओं को नहीं समझता, और आज ये वक्त है उससे लड़ाई का। ये एकजुटता का परिचय है। ये दीपों से निकली ये रोशनी उसी कालिमा को एक तरह से पराजित कर रही है। और ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में भाजपा अध्यक्ष JP Nadda. Right, the BJP President JP Nadda also we can see, and also important here we can see that they are maintaining social distance as well, you know, keeping a certain distance, which is also part of the instructions that we are given, so that, you know, this is how the virus does not have the ability to move from one person to another if we maintain a certain distance. निश्चित तौर पर सावधानियां जरूरी हैं। उन सावधानियों में जो सबसे बड़ी सावधानी, जिस तरह से बार बार तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि सामाजिक दूरी रखनी है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 2-3 मीटर का फासला होना चाहिए, ताकि वायरस को मौका ना मिले एक जगह से दूसरे जगह जाने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने का। तो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में उन चीज़ों का खासकर ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं ये भी अपील की गई कि जब आप इस दिया जला रहे हैं, जब आप मोमबत्ती जला रहे हैं, तो सैनिटाइजर आसपास ना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें। उसमें अल्कोहल होता है, उससे ज्वलनशील वो पदार्थ होता है, उससे दुर्घटना होने की संभावना है। और ये आम लोगों की तस्वीरें। We can see that people have come out now onto their balconies, all lit up. ये तस्वीरें बिल्कुल दीपावली की याद दिला रही हैं, और उसी तरह का मौका तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरह का माहौल है। और ये उसी तरह का हम भावना समझ सकते हैं जो दीपावली में होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व होता है। तो आज भी एक बुराई हमारे सामने है, और उसके खिलाफ लड़ाई के लिए पूरा जुट, चाहे मोबाइल के फ्लैश लाइट के जरिए हो, मोमबत्ती के जरिए हो, दीपों के जरिए हो, ये संदेश खास तौर पर ये सामने आ रहा है। और इस वक्त जरूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है बार बार, उसका जरूर पालन करें। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं तमाम गणमान्य लोगों की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाथों में दीप लिए हुए, और सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार तमाम एजेंसियां बार बार चर्चा कर रही हैं, वो बेहद जरूरी है। और यही है वो भावना, लॉकडाउन का पालन करना, सामाजिक दूरी का पालन करना, ताकि इस पूरे चक्र को, जो कोरोना वायरस का चक्र है, उससे तोड़ा जाए। Indeed, social distancing should be maintained, especially if you're coming out of your homes to meet and, you know, to buy your essential products. But I suppose within the family too, there is an element of social distancing, especially, you know, if one member of the household continues to go out and comes back in. So that kind of social distancing is necessary. But of course, we can see that people have, you know, been because of the lockdown, they have been at home for a long time, and they have come out onto their balconies to express their solidarity with this lockdown as well, because it's a collective effort, this fight against the coronavirus, and it is the only vaccine. As the government has said today, there is no other vaccine. The vaccine is social distancing and you know, maintaining the lockdown. That is the way that the virus can stop. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दीप के साथ खड़े हुए निश्चित तौर पर यह संदेश दे रहे हैं, एक तरह से उसी संदेश को दोहरा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा था, हम प्रकाश की महाशक्ति का अनुभव करेंगे और उस साझा उद्देश्य को जगमगाएंगे जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है, और देश इस तस्वीरों के साथ हम कह सकते हैं कि उसी आशा की ओर बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों तक सीमित हैं, लेकिन हम में से कोई भी अकेला नहीं है। उन्होंने कहा था कि 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति हम सबके साथ है और ये हम सबकी ताकत है, और ये ताकत
आज एक तरह से हमारे सामने है। Indeed, and we can see that, once the Prime Minister gave that call in his address to the nation, we found that a lot of people echoed the call from, other leaders to film stars to important personalities, sports personalities. Everyone came out in solidarity to support this call because it shows that we are together in this fight as a nation. We understand the importance of this particular fight, despite it being a harsh measure, a tough measure on our economy, on our own selves, but we have to take it, and it is the collective strength of 130 crore Indians, as we can see. और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप देख सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और चाहे आम हो या खास, जो भावना है, जो एकजुटता की भावना है, जो दीपों के जरिए सामने प्रज्वलित हो रही है, वो निश्चित तौर पर मन मोह लेने वाला है और उस अभियान को शक्ति देगा जो आज पूरा देश जिस अभियान में लगा है। पर रात्रि 9 बजे से लेकर के 9 मिनट के लिए 9 तक दीप प्रज्वलित करके कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जो इच्छा शक्ति को बल मिला है, वो हम सारे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे 130 करोड़ का देश एक साथ एकजुट खड़ा है और सफलतापूर्वक पूरी ताकत लगा करके कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 130 करोड़ देशवासियों के मन में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि अंधकार से रोशनी की ओर चलो, उजाले की ओर चलो, यह संदेश प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को दिया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लड़ने की ताकत बढ़ी है और हम सब लोग कोरोना से लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश साथ चल रहा है। मैं पुनः देशवासियों को और हमारे पार्टी के सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उनको बधाई भी देता हूं और इस विश्वास के साथ कि आज हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और इसको हम आगे कायम रखते हुए इस लड़ाई को लड़ करके सफल होंगे। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहते हुए कि विश्वास बढ़ा है, आत्मबल है वो बढ़ा है। आने जाओ। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। हेलो। हाँ ठीक। देश में कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। हम सब सामूहिक रूप से हर चुनौतियों, हर संकट, हर विपदा के अंदर हम सामूहिक रूप से मुकाबला करते हैं। यही संकल्प आज पूरे देश में दिया जलाकर एक नए उजाले के रूप में हम संकल्प करेंगे कि इस कोरोना संक्रमण वायरस के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। परिवार के लोग भी थे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक दूरी तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने विचार व्यक्त करते हुए। देश भर में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने दिए जलाए और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था बंद किया। ये एक अद्भुत ताकत देने वाला कार्यक्रम है। देश पिछले 10 दिन से घर में बैठे हैं, लोग अकेलेपन एक महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम से पता चलता है कि 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है और यही ताकत देता है कोरोना से लड़ने की। इसीलिए ये संकल्प था और लोगों ने सिद्धि करके दिखाई। हम कोरोना के खिलाफ भी युद्ध जीतेंगे। कुछ लोग इसमें भी विरोध के स्वर पकड़ कर रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर इतिहास देखेंगे तो छोटी लगने वाली चीज़ें भी कितना बड़ा परिणाम करती है, यह समझ में आएगा। और इसलिए देश के जनता को इकट्ठा करके
एक साथ ये दिया इलेक्ट्रिसिटी बंद करके दिए जलाने का जो आह्वान किया था वो 100% सफल रहा है। प्रधानमंत्री जी को बधाई, देश के जनता को बधाई। जो थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हुए कि ये जो सफलता है, ये जो कोशिश है, जो लोग साथ मिलकर आए हैं, ये दिखाता है कि किस तरह का आत्मबल, आत्मगौरव एक साथ मिलकर इस समस्या से लड़ने के लिए लोगों ने दिखाई है। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। Yes, we can see the Home Minister Amit Shah here. This would have been a little earlier in the day, between 9 and 9:09 that we got those visuals of the visual. Even though we are saying it is live, it is actually just a few minutes ago that this was done. Him lighting the lamp at his residence. तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 9 बजे दीप जलाया और 9 मिनट तक वो दीप के साथ खड़े रहे और ये संदेश देने की कोशिश की कि कोरोना के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है उसके खिलाफ पूरा देश जो है वो एकजुट है। और कैसे उन्होंने दीप जलाया और क्या संदेश देने की कोशिश की, हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी स्वयं हैं। जावड़ेकर साहब, क्या संदेश इससे जाता है पूरे लॉकडाउन? और जब देश पर कोई संकट आता है तब कोई छोटी चीजें लगती है लेकिन जनता की ताकत को प्रकट करती है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपील किया 9 तारीख को 9 बजे, पूरे देश ने इसका पालन किया। देश को हम बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बधाई, क्योंकि जब संकट का पूरा दुनिया उससे जूझ रही है और रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, तब एक देश अगर एक साथ खड़ा है तो मतलब देश की सरकार जो भी कहेगी देश की सुरक्षा के लिए, हर आदमी के सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की जान बचाने के लिए जो भी कहेंगे वो लोग स्वीकार करने को तैयार है। ये संदेश आज लोगों ने दिया है। मुझे लगता है यही इसकी बड़ी उपलब्धि है। सर, ये पुरानी हमारी परंपरा भी रही है कि घरों में दीप जलाना, दिवाली के दिन दीप जलाना और दीप जलाकर जो गंदगी है, जो खराब चीज़ें हैं, उसको दीप जलाकर हम उसको प्रवाहित भी करते हैं, उसको भगाते भी रहे हैं। तो लगता नहीं है कि इसी बहाने एक जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको जीवंत करने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? प्रकाश आता है तब अंधेरा छटता है और इसीलिए लोग दियों को जलाकर प्रकाश का उत्सव करते हैं। और ये एक तरह से प्रकाश उत्सव ही है, लेकिन ये उत्सव इसलिए है कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक दूसरे के साथ खड़ा है। चाहे फिर वो माइग्रेंट लेबर हो या चाहे कोई भी हो जो संकट में है, उसकी मदद के लिए देश के करोड़ों हाथ सामने आए हैं। यही इस संकट से उबारने का रास्ता है और इसलिए भारत ने इसमें अच्छा काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ की लड़ाई हम जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी की सराहना हो रही है, भारत की सराहना हो रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, जिस तरीके से भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए, दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 महीने से, जब से कोरोना का प्रादुर्भाव दुनिया में हुआ, चीन में हुआ, तब से वो बहुत गंभीरता से इस विषय पर लगे और इस विषय पर उन्होंने लगातार काम किया और इसलिए आज देश ने समय पर सही कदम उठाए हैं। इसी की दुनिया चर्चा करती है और पूरी जनता साथ है। ये आज फिर से एक बार साबित हो गया, फिर से एक बार लोगों को उसका ताकत का दर्शन मिला। मुझे लगता है यही ताकत हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए एक नया विश्वास लोगों के मन में पैदा करेगी।
देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, वो कहते हैं कि प्रकाश का उत्सव हमेशा से बुराई पर विजय का त्यौहार माना जाता है और एक जो पुरानी परंपरा थी उसको फिर से हमने पुनर्जीवित भी इसी बहाने की है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किया, दुनिया भर के मुल्क, चाहे इटली हो, चीन हो, अमेरिका हो, यूके हो, तमाम देशों में जिस तरीके से कोरोना का प्रसार देखने को मिला, हिंदुस्तान ने एक हद तक उस पर काबू पाने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री मोदी के जो तमाम इनिशिएटिव्स हैं वो कोरोना के खिलाफ प्रभावी नजर आ रहे हैं। यह प्रकाश जावड़ेकर, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रतिक्रियाओं को सामने लाने के लिए। तो 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरा देश एकजुट हुआ और संदेश दिया कि इस लड़ाई में हम एक साथ हैं और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम जीतेंगे जो कोरोना के खिलाफ चल रही है। यहाँ पे हम डीडी नेशनल के दर्शकों को धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन